ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੀਟਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਨੂਰਪੁਰ ਤੋਂ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਪਾਸਟਰ ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਭਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਿਲੀ? ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਚਨ ਪੜਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਔਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੀਕ ਆ। ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਆ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਅੱਖਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਗਵਾਹੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਗਵਾਹੀ ਆ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਾਲ ਆਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਫਰ ਆਇਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਇਆ ਉਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਨੂਰਪੁਰ ਚੱਠਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪਾਸਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਡਰਾਵਨੇ ਨਾਟਕ ਦੇਖਣੇ ਜਾਂ ਵਗੈਰਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖਣੇ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੌਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਤੰਗ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਮੰਮਾ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੌਂਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਆਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦੀ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ ਔਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲ ਦਿਓ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਜੈ ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਡ ਕਰਨ ਲਈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के पवित्र वचनों की हजूरी में आप सबका स्वागत है। आज की गवाहियों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं जो बीते समय में उसने गवाहियां दी। धन्यवाद करते हैं कि जो आने वाले समय में वो हमें बड़ी गवाहियों के साथ वापस लेकर आ रहे हैं। आमीन। आपको और मुझे वो बड़ी गवाहियों के साथ वापस लेकर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। खुदा की महिमा करते हुए, खुदा का आदर करते हुए और प्रार्थना करते हुए मेरे साथ, हे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज की दोपहर के लिए, आज की शाम के लिए, आज की रात के लिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज से कई हजारों साल पहले तूने मेरे लिए, मेरे परमेश्वर, मेरे परिवार के लिए, पूरी दुनिया के लिए अपनी जान दी। धन्यवाद यीशु, मेरे गुनाहों के लिए घायल किए गए। धन्यवाद यीशु, मेरी बदियों के लिए कुचले गए। धन्यवाद यीशु, मेरी शांति के लिए आपके ऊपर ताड़ना पड़ी। धन्यवाद यीशु, आपके मार खाने से हम लोग चंगे किए गए। धन्यवाद यीशु, क्रूस के ऊपर भयंकर दर्द तूने सह लिया। धन्यवाद यीशु, और मेरे लिए मारे गए। धन्यवाद यीशु, मेरे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आज भी जीवित हो तुम, और तूने अपना पवित्र आत्मा मुझे दिया। तूने अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध किया। तूने अपना बेटा मुझे बनाया। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करती हूं। अगर सिस्टर है तो करती हूं, अगर भाई है तो उसने, परमेश्वर ने तुझे बेटा बनाया, मुझे बेटा बनाया। अगर बेटी है तो परमेश्वर ने तुझे बेटी बनाया, अपनी बेटी बनाया, अपने लहू से तुझे मुल लिया। बाइबल के अनुसार
तुम अपनी जिंदगी अपनी इच्छा के मुताबिक नहीं जी सकते। मैं अपनी जिंदगी अपनी इच्छा के मुताबिक नहीं जी सकता, क्योंकि मेरा मूल्य अदा कर दिया गया है। यीशु ने अपनी जान देकर, लहू बहाकर मुझे मूल्य ले लिया। जब उसने मुझे खरीद लिया, अब फिर मैं अपनी इच्छा से कैसे जी सकता हूं? मैं अपनी मर्जी से कैसे जी सकता हूं जब जीसस क्राइस्ट ने मुझे खरीद लिया? जब हम कोई बाजार में जाएंगे कोई चीज लेने के लिए, तो वहां हम उसका पैसा दिया, हमने मूल्य अदा किया, उसे ले लिया। उसके लेने के बाद फिर शॉप वाले का अधिकार खत्म हो चुका है। अब वो चीज जो तूने खरीदी है वो तुम्हारी हो चुकी है। जैसे यीशु ने हमें खरीद लिया लहू से, क्रूस के बलिदान से, तो हम यीशु के हो गए। अगर हम यीशु के हो चुके हैं तो अपनी इच्छा से कैसे जी सकते हैं? हम अपनी इच्छा से सुबह उठते हैं, अपनी इच्छा से सुबह उठते हैं हम। जब हमारी इच्छा होगी तो हम तभी उठेंगे, चाहे वो 8 बजे हो, चाहे वो 7 बजे हो, चाहे वो 9 बजे हो, चाहे वो 10 बजे हो। हमारी इच्छा है। तुम्हारी इच्छा कैसे हो सकती है? खुदा का वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने तुझे मूल्य ले लिया, तुम्हारा मूल्य अदा कर दिया क्रूस पर बलिदान होकर, तीसरे दिन मुर्दों में से जीकर। आमीन। जब हम यीशु के हो चुके हैं तो हम अपनी मर्जी से कैसे जी सकते हैं? तो जो मेन मकसद है अन्य भाषा की प्रार्थनाओं का, इस चैनल के ऊपर जो प्रार्थनाएं होती है, जो परमेश्वर का वचन होता है, जो मेन मकसद है वो है स्वर्ग की तैयारी। टारगेट क्या है मेरा टारगेट है स्वर्ग के लिए तैयार करना रूहों को। पवित्र आत्मा से क्यों नहीं भरते? मेरा टारगेट है कि हम कमियों के ऊपर काम करेंगे। मेरा मकसद है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। सबसे पहला मकसद है मेरा स्वर्ग जाऊंगा, और स्वर्ग में लेकर भी जाऊंगा साथ में, अकेला नहीं जाऊंगा, हजारों लाखों को लेकर जाऊंगा। हालेलुया। अगर सचमुच आप सीरियस हैं स्वर्ग जाने के लिए और स्वर्ग की तैयारी करने के लिए, इस चैनल को लाइक कर लो, इस चैनल को फॉलो कर लो। अगर आप चाहते हो कि हम पवित्र आत्मा से भरे, पवित्र आत्मा से कैसे भर सकते हैं? वो ही बातें खुदावन मुझे देता है, उसी बातों को मैं आपके साथ शेयर करता हूं। वो स्वर्ग की बातें, वो जीवन की बातें, जो जीवन की रोटी है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अगर तुम जीसस क्राइस्ट के हो चुके हो, उसने मूल्य अदा कर दिया, कुछ तुझे खरीद लिया, उसने ले लिया, तुम उसके हो चुके हो, वो तुम्हारा हो चुका है, तो तुम अपनी इच्छा से कैसे जी सकते हो? कैसे तुम चोरी कर सकते हो? आज खुदा ने कहा है फिर से, चोरी करने वालों के लिए प्रार्थना करनी है। चोरी करने वालों को पवित्र आत्मा गाइड करेगा। पवित्र आत्मा अपनी अकल से, अपनी समझ से आपको अपने वचनों का भेद देगा। तो जब ताड़ना के वचन आए तो उसे खुशी से रिसीव करो। जब ताड़ना होती है तो कहता अगर ताड़ना कोई सह ले, कोई ताड़ना को रिसीव करे, तो उसके ऊपर अभिषेक आएगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उसके ऊपर खुलेगी। कहता जो ताड़ना सहने वाले लोग हैं, प्रभु की ताड़ना को, कड़वे वचनों को पचाने वाले लोग, लेने वाले लोग, और गुस्सा ना करने वाले, गुस्सा करने वालों के लिए अभिषेक नहीं है। क्योंकि पहला कुरिन्थियों 14 चैप्टर में लिखा हुआ है कि तुम गुस्सा, एक गुस्सा शैतानी है और एक गुस्सा पवित्र है। तो जब खुदा अपने दासों के द्वारा तुझे ताड़ना दे, तो अगर तब तुम गुस्सा करते हो तो शैतान के अटैक में हो। एक सेवक है वो 4 बजे उठकर प्रार्थना कर रहा है, और एक विश्वासी है कि वो 8 बजे उठकर, 9 बजे उठकर वो सेवक को सिखाने की कोशिश करता है, तो वो अटैक में है। आप लोगों को अपनी बुद्धि से नहीं जीना। प्रभु ने खास आज कहा मुझे चोरी के आत्मा के लिए प्रार्थना करनी। चोरी के आत्मा, चोरी करने वालों के लिए प्रार्थना करनी है, चोरी करने वालों के लिए प्रार्थना करनी है।
क्योंकि खुदा चोरी करने वालों को बदलने जा रहा है। खुदा चोरी करने वालों को बदलने जा रहा है। चोरी की आत्माओं को वो आपसे निकालने के लिए जा रहा है। चोरी की आत्माएं, बहुत सारे लोग अविश्वासी है, कहते हैं हम तो कोई चोरी करते ही नहीं। आज परमेश्वर का वचन जब खुलेगा आसमान से, स्वर्ग से, तो पता चलेगा कि चोरी करते हो कि नहीं करते हो। परमेश्वर का वचन एक ऐसा आईना है, ऐसा शीशा है। जैसे शीशे के सामने हम अपनी शक्ल को देखते हैं और पता चलता है कि मैं खड़ा हूं, सुंदर हूं, कैसा हूं, ऐसे परमेश्वर का वचन है, जब सुनता है, जब निकलता है मुख से, तो आपको आपकी कमियां, हमें अपनी कमियां समझ आती है, हमें दिखती है। जब बोलूंगा आपको ऐसा लगेगा मेरे लिए बोल रहा है ये पास्टर मेरे ऊपर लगाकर वचन कर रहा है, मेरे को कह रहा है ये। हाँ, तेरे को कह रहा हूं। अगर तुझे लगता है ये कि ये वचन मेरे लिए है तो खुशी मनाओ, क्योंकि जीसस जिससे बात करते हैं, ताड़ना करते हैं, वो उसी से प्रेम करते हैं, इसीलिए ताड़ना का वचन मिलता है। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे नीति वचन 9 चैप्टर उसकी 17 और 18 लाइन से। चोरी का पानी मीठा है। पहले भी वचन हुआ चोरी के ऊपर, पर आज जो है, आज फिर से एक नया प्रकाशन, अलग तरीके से पवित्र आत्मा फिर से मुझे और आपको वचन देने जा रहा है। मुझे पता है इस वचन के अनुसार बहुत सारे लोग आजाद हो जाएंगे। आज की प्रार्थनाओं में बहुत सारे लोग आजाद हो जाएंगे जो चोरी करते होंगे। पवित्र आत्मा उन्हें बदल देगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा उनके ऊपर अधिकार लेगा आज के वचन के द्वारा। पवित्र आत्मा उनके हृदय को बदल देगा। पवित्र आत्मा उसके ब्लड से चोरी की स्पिरिट को निकालेगा। पवित्र आत्मा उसके वचन, उसके ब्लड से, उसकी हड्डियों से चोरी की स्पिरिट को वो निकालेगा यीशु मसीह के नाम में। चोरी की आत्माएं निकलेगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हम यीशु के नाम में कमांड करते हैं चोरी की आत्मा को। और खास प्रार्थना करता हूं आज के वचन को ना सुनने वाली आत्मा, उसका दिल नहीं करता कि मैं सुनूं, मन नहीं करता इस प्रार्थनाओं को मैं सुनूं, वचन को सुनूं, क्योंकि दिल में क्रोध है, गुस्सा है। यीशु के नाम में वह शैतान की आत्मा को कमांड करता हूं, निकल जाए इन जीसस नेम। सारी जलसी, गुस्सा, नफरत, आउट इन जीसस नेम बाय फायर। अगर आज कंट्रोल कर लिया और इस वचन के अनुसार अपनी जिंदगी बनाई, यहोवा कहता है बड़े काम दिखाऊंगा तुझे, बड़े बड़े काम दिखाऊंगा। यहोवा कहता है बड़े काम, बड़े इंतजाम होंगे, बड़े रास्ते ओपन होंगे। परमेश्वर ने कहा जिसने खुदा के वचन को माना, खुदा ने उसको बरकतें दी, खुदा ने उसके लिए आकाश के झरोखे खोल दिए। अब्राहम ने खुदा के वचन को माना तो खुदा ने उसके लिए बरकतों को रिलीज किया। एक ऐसा नाम मिला जो सब नामों से अलग है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे नीति वचन 9 चैप्टर उसकी 17 और 18 लाइन से। चोरी का पानी मीठा है, चोरी की रोटी बहुत स्वादिष्ट है, पर उस चोरी करने वाले को पता नहीं वहां पर दुष्ट आत्माएं हैं, उसकी संगति पताल में है। जिसका मतलब है नरक से दोस्ती करने, जिसका मतलब है नरक से दोस्ती करनी। आपकी फ्रेंडशिप किससे? स्वर्ग से या नरक से? वो कहता है अगर कोई चोरी करेगा, अगर कोई चोरी करेगा तो उसकी दोस्ती दुष्ट आत्माओं के साथ हो जाती है। उसके आसपास दुष्ट आत्मा का झुंड उसे घेर लेता है। वो कहीं भी जाएगा दुष्ट आत्माएं उनके साथ साथ जाएगी। किसी के घर में वो जाएगा दुष्ट आत्मा उसके साथ साथ जाएगी। किसी शॉप पर जाएगा दुष्ट आत्मा उसके साथ साथ जाएगी। वो चोरी करने की तलब बढ़ती जाएगी और दुष्ट आत्मा में वो बढ़ती जाएगी। एक दो दुष्ट आत्मा, एक चोरी की, एक दो दुष्ट आत्माएं, दूसरी चोरी की, 4 दुष्ट आत्माएं होगी, चौथी चोरी की। और एक चोरी करने वाला अगर चोरी कई सालों से करता आ रहा है, ये सोच लो कि झुंड, बहुत बड़ा झुंड दुष्ट आत्माओं का आपके साथ है और इसे मारने के लिए परमेश्वर का आत्मा और अन्य भाषा की प्रार्थनाएं चाहिए। एक अच्छा अगुआ चाहिए, शाखा लाबा लाखा लेखा, एक आत्मिक अगुआ चाहिए। मैं 3-4 पास्टरों की बात नहीं कर रहा हूं, 3-4 पास्टरों की बात नहीं करता हूं। पास्टर लोग दोस्त अपने हजारों ही हो सकते हैं, पास्टर दोस्त, पर एक खास अगुआ है आपका। मैं एक पास्टर, आत्मिक पास्टर के अधीन रहने वालों की बात कर रहा हूं।
तो छूटेंगे, जब एक के अधीन हो जाएंगे तो छूटेंगे। उसने कहा चोरी करने वाला आगे से चोरी ना करे, और उसने कहा जो चोरी करने वाला है वो दुष्ट आत्माओं का झुंड उसके साथ होता है, उसकी संगति पताल में है। पताल में मतलब नरक की आत्माएं, नरक की आत्माओं के साथ उसका गहरा रिश्ता बन चुका है। नरक से उसकी दोस्ती हो चुकी है कि जब वो इस दुनिया में भी नरक बन जाएगी जिंदगी, वंशों की, बेटे की, बेटी की, उसकी बेटी, उसका बेटा, वंशों की जिंदगी नरक हो जाएगी, क्योंकि उसने कहा उसकी दोस्ती नरक से है, उसकी संगति पताल में है। जो चोरी से घर बना लिया वो रहेगा नहीं, जो चोरी से तूने जमीनें खरीद ली वो रहेगी नहीं। चोरी का पानी मीठा लगेगा, वो कहता उस टाइम स्वादिष्ट लगेगा। चोरी कर ली, पैसा आ गया, अब मैंने जमीन ले ली, मैंने घर बना लिया, मैंने चोरी से गाड़ी ले ली, मैंने चोरी से ये ले लिया, मैंने चोरी से ये बना लिया, कुछ भी रहेगा नहीं। कहता तब तो मीठा लगेगा, तब तो तुम खरीद लोगे, तब तो अपनी जमीनें ले लोगे, घर ले लोगे। कहता है पर आने वाले टाइम में वो कुछ भी रहेगा नहीं, क्योंकि वो सब कुछ तबाह कर दिया जाएगा। ऐसे पौधे देखे हैं जो बहुत बड़े हुए, ऐसे वृक्ष, ऐसे पौधे बढ़ गए, बहुत बड़े बड़े हो गए। वो जब फल लगने की बारी आई तो फल लगा नहीं। ऐसे कुछ लोग हैं, बहुत बढ़ जाते हैं, कभी कभी दिखते हैं बहुत पैसा है, दिखते हैं बहुत अमीर है। अगर वो वफादारी से अमीरी नहीं है, उसमें अगर चोरी है तो गिर जाओगे। रेत के ऊपर घर बनाने वाला कभी स्थिर नहीं होता। जब तूफान आएंगे ना तब पता चलेगा। और यही कहता है खुदा का वचन, अगर तूने पवित्र आत्मा से भरना है, अन्य भाषा से भरना है, तुझे वचन के बीच में से होकर जाना होगा। तुझे मेरे वचनों के, मेरे हुक्म और मेरी विधियों को मानकर जाना होगा, चलना होगा। मेरे पीछे पीछे चलना होगा, जैसे मैं कहता हूं वैसे करना होगा। कहता फिर आंधी आएगी, तूफान आएगा, आग आएगी, जो भी आएगा तुझे गिरा नहीं सकेगा। तेरी नींव इतनी स्ट्रांग हो जाएगी क्योंकि तूने ईमानदारी से, तूने पत्थर के ऊपर, अपनी चट्टान के ऊपर अपना घर बनाया है। हालेलुया। निर्गमन जब हम 20 उसकी 15 20 की 15 पढ़ते हैं तो लिखा है तू चोरी ना करना। जब किसी बेटी को, बेटे को ताड़ना के वचन मिले तो उनको इस वीडियो को कट मत करना, रोकना मत। उसने कहा मैं ताड़ना उसे देता हूं जिसे प्रेम करता हूं। अपनी बेटी को बाप ताड़ना दे सकता है, मार सकता है, समझा सकता है, पड़ोसियों के नहीं। तो जीसस क्राइस्ट आपसे प्यार करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, आपको छुड़ाना चाहते हैं, आपको बचाना चाहते हैं। ताड़ना के वचनों को रिसीव करो और वचन को ग्रहण करो। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा नीति वचन, जब हम 9 चैप्टर्स की 8 से पढ़ते हैं, 8 और 9 पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है मूर्ख को, मूर्ख इंसान को, मूर्ख स्त्री को समझ की बातें ना सिखा, उसको ताड़ना ना दे, नहीं तो वो तुम्हारी दुश्मन बन जाएगी। कुछ लोग को अंदर ऐसी स्पिरिट है, ऐसी गुस्सा करने वाली आत्माएं हैं, क्योंकि शैतान को पता है आपको कैसे गिराना है उसने। जैसे जैसे समझ आती गई उन आत्माओं से आजाद होते जाओ यीशु मसीह के नाम में। मेरा खुदा गुस्से की आत्मा को निकाले, चोरी की आत्मा को निकाले। यीशु के सामर्थ्य और जीवत नाम में चोरी की आत्मा निकले इन जीसस नेम। हालेलुया, हालेलुया।
शाको लाबाराटा का मना सुंडो लाबोरा का नमा सेंडे रेखे। आज प्रार्थना भी है, आज वचन भी है, आज अन्य भाषा भी है, फिर से आज खुदा का गहरा भेद भी है। एक खुदा का ऐसा वचन है जो आपको तीखा कर देगा। ऐसे जब किसी डंडे को सामने आगे तीखा करना होता है ना, ऐसे ऐसे घटता है। ऐसे ही खुदा का वचन आपकी कमियों को आपके बीच में से निकाल रहा है। वो आपको एक आईना है, आप देखो आपके अंदर कौन कौन सी कमी है। जब सुनते जाओगे तो कमियां आपके दिल में आएगी कि ये तो मेरे लिए लग रहा है, तो आपके लिए ही है ये वचन, और उससे पहले मेरे लिए है। हालेलुया। उसने कहा चोरी का पानी मीठा है, चोरी की रोटी बहुत स्वादिष्ट है, पर उस चोरी करने वाले को पता नहीं वहां पर दुष्ट आत्मा है, उसकी संगति पताल में है। पता, पर चोरी करने वाले को पता नहीं वहां पर दुष्ट आत्मा है, उसकी संगति पताल में है। नरक से उसकी दोस्ती हो चुकी है। अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया नरक को उसने, दुष्ट आत्माओं को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया। जब बहुत सुंदर लड़का दिख रहा है, उसके बीच में बहुत गंदी और बहुत भयंकर दुष्ट आत्मा है, उसके पास मत जाना। बहुत सुंदर लड़की है, उसके पीछे उसके बीच में बहुत गंदी और बहुत भयंकर दुष्ट आत्मा, जिसे देखकर उल्टी आ जाएगी तुझे। पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है ये बात। शाका लबाला संडाला का लबा शेखे, बचकर रहना, गंदगी अंदर नहीं जाने देना, गंदगी को दूर करना है। गंदगी को कैसे निकालेंगे? कैसे गंदी दुष्ट आत्माएं, बेविचार की, चोरी की आत्माएं, बुराई की आत्माओं को कैसे हम इनके ऊपर जयवंत हो जाएंगे? बस इन प्रार्थनाओं के साथ जुड़े रहो, इन वचनों के साथ जुड़े रहो। धीरे धीरे सब कुछ बदलता जाएगा, क्योंकि आपके लिए जो प्रार्थनाएं हो रही है, आज नहीं तो कल उसका उत्तर मिलेगा जरूर। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। पहले प्रार्थना करते थे हम, हमारे परिवार के मेंबर में से कोई सरपंच बन जाए, मेरी मां सरपंच बन जाए, मेरा भाई सरपंच बन जाए, मेरा बाप सरपंच बन जाए। तो जब सरपंच बन गया, गलियों के काम रुके हुए हैं, नालियों के काम रुके हुए हैं, सड़कों के काम रुके हुए हैं, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, मोटर के लिए, और हम सरकार के पैसे से अपनी ऐश प्रस्ती कर रहे हैं। सरपंच चोरी कर रहे हैं भाई, मैंने आत्मा में महसूस किया। सरपंच चोरी कर रहे हैं। सरपंच, सरकार पैसे देती है सड़क बनाने के लिए, गांव की सड़कों को पक्का करने के लिए, मोटर लगाने के लिए। गरीब लोगों को यह छत नहीं है, झुग्गी बनाकर बैठे हुए हैं, उनको उनकी छत बनाने के लिए पैसे सरकार दे रही, सरपंच लोगों को भेज रही है। वो पवित्र आत्मा ने कहा, पर वो चोरी कर रहे हैं। वो अब उस पैसे से अपनी गाड़ियां ले रहे हैं, उस पैसे से अपने घर बना रहे, अब उस पैसे से अपना बेबीचार कर रहे हैं, उस पैसे से औरतों को, पराई स्त्रियों को वो खाना खिलाते हैं, उस पैसे से वो उनको गिफ्ट लेकर देते हैं। मैंने आत्मा में मैंने देखा ये, और इसीलिए मैंने आत्मा में देखा, प्रार्थनाओं में खुदा ने मुझे कहा है ये वचन देना है। कड़वा है, बचा लेना, अंदर जाकर ये इतना मीठा हो जाएगा कि स्वर्ग के फ्रेंडशिप जो नरक की है ना, वो स्वर्ग की हो जाएगी, स्वर्ग की। आपके परिवार में कोई चोरी करता है, आप चुप करके बैठे हैं, चोरी करके वो पैसे लेकर आ रहा है, चोरी करके वो चीजें लेकर आया घर में, और आप चुप हैं, आप बोलते नहीं। आप भी मार खाओगे, साथ में यहोवा से भी खाओगे और लोगों से भी। एमएलए बन जाए प्रभु, पुलिस वाला बन जाए मेरा भाई, मेरा बाप, मेरा रिश्तेदार, प्रार्थनाएं करते हम। जब बन गया तो चौक पर खड़ा है, रिश्वत ले रहा है, वो चोरी नहीं है क्या? किसी के सिर में चोट लगी हो, उसने हेलमेट नहीं लिया, अरे उसके चोट लगी है, उसने हेलमेट नहीं लिया,
अब तू कहता कि तू 1000 रुपया मुझे दे दे, 1000 मुझे दे दे, तो तू चला जा। और रिश्वत है, और ये चोरी नहीं है क्या? पुलिस वाले होकर मदद करने के बजाय तुम चोरी करते हो, चोरी करवाते हो। शाकाला बारा बाला खाना नो सोटो को बोरेटे के बाला माटो को बोरेटे के बाला मिशन नमाना सोटो को बोरेटे के बाला बा लेकोला बारा नमा सोटो को बोरेटे के बेले संदा नमानो को बोरेटे के बेले के लेबे के लेबे से के। हमारे गांव में एक सरकारी पुलिस वाला बन गया, सरकारी नौकरी उसे मिल गई, पुलिस वाला बन गया वो। 30-35 हजार उसकी तनख्वाह लगी, कई साल पहले की बात है। 30-35 बहुत, उस टाइम बहुत था वो। उसने और लालच किया, गलत तरीके से 2 नंबर के लोगों का साथ देने लगा। ऐसे रोक रोक के लोगों को पैसे लेने लगा। पकड़ा गया और छुट्टी हो गई, वहां से नौकरी चली गई। दिहाड़ी करता करता मर गया वो। बाद में दिहाड़ी कर रहा था, इतना छोटा सा घर, दिहाड़ी कर रहा था। लब्रोखा वाला सेके नेब्रोखा वाला काटे के देखे। प्रभु जी वकील बन जाए, मेरा भाई वकील बन जाए, प्रभु मेरी बहन वकील बन जाए, मेरा ये वकील बन जाए, परमेश्वर जज बन जाए। जब बन गया तब चोरी कर रहे हो। यहोवा से तो चोरी करते हो तुम। अब तुम चोरी करते हो और सोचते हो कि तुझे कोई देखता नहीं है। उसने जज बना दिया, उसने वकील बना दिया, उसने पुलिस वाला बना दिया, उसने सरपंच बना दिया, उसने मेंबर बना दिया। और अब जब तुम्हारे पास आकाश खोलकर यहोवा ने तुझे बरकत दी, पैसे धन की आशीष दी, और तुम चोरी करते हो, उस पैसे को ईमानदारी से यूज नहीं करते हो। खुदा ने ये औदा दिया कि तुझे और बड़े औदे पर ले जाऊं, और तू यहां पर ही फेल हो गया चोरी करके। अब ऊपर नहीं नीचे, क्योंकि तेरी दोस्ती ऊपर तो स्वर्ग की दुनिया है ना, पताल कहता उसकी, देखो क्या लिखा है, उसकी संगति पताल में है। अब पताल वालों के साथ संगति होगी तो नीचे ही होगी ना, ऊपर तो स्वर्ग है ना। फिर नीचे जाओगे, ऊपर तो नहीं जाओगे, ऊपरी। अब मैं पुलिस वाला हूं, बड़ा ओहदा मिल जाएगा मुझे, नहीं मिलेगा। चोरी करनी बंद करो फिर मिलेगा। सरपंच हूं ना, अब मैं नेता बन जाऊंगा, अभी एमएलए बन जाऊंगा मैं, नहीं बनेगा। चोरी बंद होगी तब बनेगा। हालेलुया। यहोवा एक एक को अपने आत्मा के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा सीधा करेगा। अगर कोई नहीं होगा, अगर कोई नहीं पश्चाताप करेगा, आज इस वचन को सुनकर आने वाले दिनों में घुटनों पर आने वाले हो तुम। पवित्र आत्मा खास आज पूरी ताड़ना से कह रहा है, पवित्र आत्मा। फिर प्रार्थना करवाने का कोई फायदा नहीं है। जो बात को ना माने उसके लिए प्रार्थना करनी भी नहीं चाहिए। कोई बात को माने, हां मैं छूटना चाहता हूं प्रभु, पास्टर जी मैं छूटना चाहता हूं, मैं पाप से निकलना चाहता हूं, मैं व्यभिचार से निकलना चाहता हूं, मैं चोरी से निकलना चाहता हूं, मेरा इलाज करो। जो नम्र है, जो अधीन है, जो कहते हैं कि मैं छूटना चाहता हूं, उनके लिए प्रार्थना होगी। जो घमंड से बैठे, घमंड करके, घमंडियों का सामना वो करता है। फिर अगर आप जानते हो किसी को चोरी करता है कोई, वीडियो भेज दो उसको ये वीडियो भेज दो। अगर लगता है कि कोई चोरी करता है, उसको ये वचन सुना दो, उसको बरकत मिलेगी, यहोवा तुझे बरकत देगा। हालेलुया। अगर आपके घर में कोई चोरी करने वाला, रोक दो उसको। आने वाले दिन बहुत भयंकर है। भयंकर दिनों में वही स्थिर खड़ा रहेगा जो यहोवा का भय मानेगा, जो चोरी करने के लिए अपने हाथ को रोक देगा। आज रुक जाओ। आने वाला 2025 बहुत से लोगों को सरकारी नौकरियां मिलने जा रही है। अगर आज रोक दोगे,
छोटा सा काम बड़ा होने जा रहा है। अगर आज रोक दोगे, बहुत से रास्ते ओपन होने जा रहे हैं। यहोवा कहता है आशीष के, फाइनेंशियली परमेश्वर कहता है बढ़ाने जा रहा हूं। खाने का, पीने का, कपड़े का सब इंतजाम यहोवा कहता है भेजूंगा मैं। 3 महीने निकालो, प्रार्थनाओं में, फास्टिंग में जाओ, खुदा के साथ जुड़ जाओ, कमियों के ऊपर काम करो। यहोवा कहता है मैं सब कुछ मुहैया करूंगा। आमीन। वो दे चाहे ना दे, चंगा करे चाहे ना करे, मैं तो यहोवा को ही मानूंगा। हम तो ऐसे हैं भाई, प्यार करने वाले को कोई मतलब नहीं। प्यार का मतलब कुर्बानी है। तो जब कुर्बानी की बात आए तो लोग, गुस्से वाली स्पिरिट उनके अंदर आ जाती है। बचकर रहो इससे, पाप ना करो, गुस्सा तो करो। हालेलुया। पिछले दिनों में, पिछले समय में वीडियो डालने के लिए मैंने, किसी ने मुझे वाईफाई का मुझे अटैचमेंट करवा दी। वाईफाई लगा कहीं और था, तो उनको शायद पासवर्ड पता था, तो उन्होंने मेरे वाईफाई अटैच करवा दिया। थोड़े दिन चलाने के बाद पवित्र आत्मा मुझे कहने लगा, पवित्र आत्मा मुझे प्रेशर, मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैंने कहा उनको तो पता नहीं जिनका वाईफाई है, तो अगर मैं उसके साथ अटैचमेंट करता हूं बिना उसको पता ही नहीं उनको, अगर मैं वीडियो डालता हूं तो अटैचमेंट करता हूं, तो ये तो एक चोरी हो गई ना। वाईफाई, आप लोगों में कोई ऐसा होगा जो कुंडी डाल लेते हैं किसी के, एक आपकी कोई सपोर्ट कर रहा है, उनको पता है, वो तो अलग बात है, वो उसे चोरी नहीं कह सकते। एक तो किसी को पता ही नहीं, तूने चोरी से कुंडी डाली हुई, इंटरनेट को चला रहे हो, दब के गाने चल रहे, दिन रात इंटरनेट चलता है आपका, बाइबल चाहे रह जाए, वर्शिप रह जाए, प्रार्थना रह जाए, पर इंटरनेट दब के चल रहा है। वो भी कैसे? चोरी की, चोरी, वाईफाई चोरी हो रही है, लोगों का वाईफाई चोरी हो रहा है भाई। क्रिश्चियन लोग तो इस वचन को खा लो, पचा लो, अंदर रख लो, छोड़ दो, एंड में क्या होने वाला है तुम सोच भी नहीं सकते। अगर नहीं छोड़ोगे, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है तुम सोच भी नहीं सकते। पर आज खुदावन तुझे आगाह करता है, कहता वो अपना वचन भेजता, चंगा करता और आने वाली तबाही से बचा लेता है। कुछ लोग कहते हैं हम चोरी नहीं करते। आप में से सुनने वाले बहुत सारे मन में ये चलता होगा, मैं तो कोई चोरी नहीं करता हूं, मैं तो ठीक हूं भाई। अभी जब आईना देखोगे ना, ये वचन के अनुसार जब देखोगे तुम्हें पता चलेगा कि तुम चोरी करते हो कि नहीं करते हो। जो नहीं करते वो बेस्ट है, बहुत आशीष लेंगे यहोवा, तुझे बहुत बढ़ाएगा। चोरी करने का मौका मिला पर नहीं की। कई बार मुझे मोबाइल गिरे हुए मिल गए, मैंने वापस कर दिए। मोबाइल बहुत अच्छा मिल गया गिरा हुआ, सिम निकाली, फेंक दी, अपनी सिम डाल ली। इसे चोरी कहते हैं। और चोरी करने वालों के साथ दुष्ट आत्माओं का झुंड होता है। पताल में उसकी दोस्ती है, नरक उसका बेस्ट फ्रेंड है। पवित्र आत्मा की आग, अन्य भाषा की आग ऐसे नहीं आएगी लाइफ में। जब तक वो नहीं आएगी तब तक हम बड़े कामों को नहीं देखेंगे। सबसे बड़ा काम पवित्र आत्मा से भरना, सबसे बड़ा काम रूहों को बचाना, सबसे बड़ा काम दूसरों की भलाई करना, सबसे बड़ा काम दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करनी। हालेलुया। सबसे बड़ा काम बाइबल का प्रचार करना, सबसे बड़ा काम, सबसे बड़े काम। बाद में तो संसार की सब आशीषें 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 वो खुलती जाएंगी, खुलती जाएंगी, खुलती जाएंगी। क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूं ये? क्योंकि मैंने देखा अपनी लाइफ में, क्योंकि जो होने वाला है बहुत महान, बड़े बड़े रास्ते ओपन होने जा रहे हैं, बड़ी बड़ी टेस्टमनी आने जा रही है। मैंने कहा था ना, जब मैंने अन्य भाषा की प्रार्थना को स्टार्ट किया तो मैं एक एक गवाही आपको देता जाऊंगा। यही प्रूफ है कि यहोवा की ओर से शुरू हुआ, आत्मा के द्वारा शुरू हुआ। हालेलुया। आत्मिक सेवक है। अभी हम क्रिश्चियन लोग
और अन्य जाति के लोग एक और चोरी करते हैं। कुछ लोगों की बात कर रहा हूं, सबकी नहीं। जो करते होंगे, अभी जब मैं वचन पढ़ूंगा तो आपको समझ आ जाएगी आप कहां पर चोरी करते हो। मलाकी 3 चैप्टर उसकी 9, 10 और 11। तुम पर भारी श्राप पड़ा है, पढ़ लो तुम भी, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। ये मैं कह रहा हूं कि वचन कह रहा है। लूटने का मतलब क्या होता है? चोरी करने वाला। तो चोरी करने वाला बाइबल के अनुसार, बाइबल में जो लिखा हुआ है, अगर वो आशीषित होना चाहता है, आकाश के झरोके वो सोचता है कि खुल जाए मेरे लिए, आशीष की वर्षा इतनी हो, रखने को जगह ना हो, तो चोरी करने वाला। ये ध्यान दो, तुमने दसवांत, तेरे पास खुदा ने तुझे पैसे की आशीष दी, तेरे पास 10,000 आया, तेरे पास 5,000 आया, तेरे पास 10,000 आया, तेरे पास कितने आए, तेरे पास कितनी कमाई तूने की, और तूने उसका हिसाब नहीं निकाला, तूने उसका 10% नहीं निकाला। तूने बस अगर 10,000 कमा लिया तो तूने 100 दसवान निकाल दिया, तूने 500 दसवान निकाल लिया, तूने उसको हिसाब नहीं उसका किया, और तू दसवान अपनी इच्छा से निकालते हो तुम लोग। बाकी तो बहुत हिसाब किताब इतने लगते हैं बाकी कामों के लिए। किसी बहन ने कुछ लेना हो, किसी भाई ने कुछ लेना हो, किसी ने अपने बेटे के लिए कुछ लेना हो, किसी ने अपनी बेटी के लिए कुछ लेना हो, कितना अच्छी अच्छी चीजें सोचते हो। अरे कोई बात नहीं, अच्छी होनी चाहिए, महंगी हो तो कोई बात नहीं, अच्छी होनी चाहिए। पर जब परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं करते तो तुम क्या करते हो? तुम चोरी करते हो। चोर के साथ दुष्ट आत्मा का झुंड होता है। उसने कहा जब तुम दशवांत निकालोगे तो मैं दुष्ट आत्माओं को झिड़कूंगा। अब चोरी करने वाले इन आत्माओं से आजाद कैसे हो सकते हैं? उसने कहा जब तुम दसवांत में ईमानदार हो जाओगे तो मैं दुष्ट आत्माओं को झिड़कूंगा। पताल में तेरा कोई हिस्सा नहीं, नरक में तेरा कोई हिस्सा नहीं होगा। तेरी फ्रेंडशिप नरक के साथ नहीं होगी, तेरी फ्रेंडशिप कहता स्वर्ग के साथ होगी। उस स्वर्ग के साथ तेरी फ्रेंडशिप हो जाएगी और स्वर्ग की ही खिड़कियां तेरे लिए खुल जाएगी। आशीष की वर्षा इतनी होगी, रखने को जगह नहीं होगी। दुष्ट आत्माओं को, फजूल खर्चे की, एक्सीडेंट की, ऑपरेशन की, डेथ की आत्माएं, फजूल खर्चे की आत्माएं, नशे की आत्माएं, कहता सब दुष्ट आत्माओं को मैं निकालूंगा तेरी जिंदगी से, तेरी लाइफ से। कहता है जब तू इसमें ईमानदार हो जाएगा, चोरी करनी बंद कर दोगे। जब तुम दसवान नहीं निकालते तो चोरी नहीं करते। तुम लोग चोरी करते हो। जितने श्राप बने हुए हैं तुम पर हर खुदा तोड़ सकता है अगर तुम हम दसवां ईमानदारी से निकालते रहे। अपने दुखों में हमने जब 4-5 लाख का कर्जा हो गया था तब भी हमने 70% निकालना शुरू किया। तब भी अपने महान दुखों में किस्तें रुक जाती थी। किस्त आज बहाना है, हमारी फलानी किस्त आने वाली है, फलाने के पैसे देने, हमने इसके पैसे देने, हमने उसके पैसे देने। और प्रभु तो जानते हैं ना मुश्किलों को, परेशानियों को, वो सब कुछ जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि तुम चोरी करते हो और चोरी करने वालों के ऊपर श्राप बना हुआ है। इस श्राप को तोड़ने के लिए वो कहता है कि मेरे वचन के बीच में से होकर चलो। चोरी करने वाला चोरी ना करे, दसवां ईमानदारी से निकाले, चोरी बंद करे। मां बाप को झूठ बोलकर जाते हैं, वो चोरी नहीं है। बेटी या बेटा मां बाप को झूठ बोलकर गए, बेटी कहती मैं सहेली के पास जा रही हूं, ये झूठ नहीं है कि तुम सहेली के पास नहीं, सहेली के पास गई, ये झूठ नहीं है, ये चोरी नहीं है। इसे कहते हैं चोरी का आत्मा, व्यभिचार का आत्मा, चोरी का व्यभिचार। और परमेश्वर छुड़ाना चाहता है बेटी को, बेटे को, सबको। आज इसलिए इतना कड़वा, सख्त, ताड़ना से भरा हुआ वचन है।
कुछ लोग तो थोड़ी सी वीडियो देखेंगे और कट कर देंगे, क्योंकि कुछ लोगों को पचेगा नहीं। और जिसको पता है कि मैंने बदलना है, मेरी कमियां मुझे जाहिर हो रही है, मुझे दिख रही है, यहोवा का आत्मा मुझसे बात कर रहा है, वो तो एंड तक देखेगा और अपनी गलती को मानकर छोड़कर जाएगा आज। हालेलुया। किसी लड़के के साथ घूमती हो, घर से बोलकर गई स्कूल जा रही हूं, कॉलेज जा रही हूं, ऑफिस में जा रही हूं, और फिर तुम सिनेमे में बैठे हो, पिक्चरें देख रहे हो, शाका लाबा लाका लाबा लाका लाबा लेबा नाका लाबा लाका, स्कूल में पढ़ने के लिए गई और लड़कों के साथ घूम रही हो, चोरी चोरी फोन पर बातें कर रहे हो, जिसे चोरी नहीं कहते क्या? हाथ जोड़कर बेनती है ऐसे काम करने वालों, मैं प्रैक्टिकल जानता हूं, कोई ऐसा काम, कोई ऐसा व्यभिचार करे, उसको बहुत दुखों में से होकर जाना पड़ता है, बहुत दुखी होना पड़ता है। मैं जानता हूं इस बातों को, हम भी पापों में थे, हम जानते हैं। आज हम हाथ जोड़ जोड़कर क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि हम जानते हैं दुखों से जिंदगी भर जाएगी, कांटों से, उदासियों से, निराशाओं से भर जाएगी जिंदगी। खुदा के वचन के बीच में आ जाओ, तौबा कर लो, मन फिरा लो, जल्दी से फास्टिंग में चले जाओ, जल्दी से प्रार्थनाओं में चले जाओ, जल्दी से एक अच्छा अगुआ ढूंढो, उसके साथ जुड़ जाओ, जल्दी से करो। हालेलुया। बाबा शेखला बरामा सका देखो बाबा शेखे ले बरे बेशेके। पत्नी को झूठ बोलकर गए, मैं ऑफिस जा रहा हूं, मैं बिजनेस के लिए जा रहा हूं, मुझे 2 दिन लगेंगे, और वहां पर घूमता है पहाड़ी इलाके में, ठंडी हवाओं में, लड़कियों को साथ लेकर। ये चोरी नहीं है क्या? आज जितनों के लिए बोला लग रहा है ना मेरे लिए है, तो सोच, आज मुड़ाओ, आज मन फिरा लो, आज तौबा कर लो। यहोवा का आत्मा शक्ति से कह रहा है आज वो तुझे पवित्र आत्मा से भरना चाहता है, वो तुझे बड़ा नाम देना चाहता है, वो तेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम करना चाहता है। इतना तो कर सकते हो रोज अटैक में रहकर कि यीशु मुझे बदल दे, मैं पापी हूं, मैं गुनाहगार हूं, मुझे बदल दे यहोवा, मुझे चोरी की आत्मा से बचा, मुझे व्यभिचार से बचा, मुझे झूठ की आत्मा से बचा ले, मुझे बचा परमेश्वर, मुझे फ्री कर। फिर वो जब प्रार्थनाएं करते रहोगे, एक दास आपकी जिंदगी में आएगा, एक पास्टर आएगा आत्मिक, जो आत्मा के द्वारा प्रार्थना करता है, उसके द्वारा फिर छुटकारा होगा तुम्हारा। हालेलुया। लेब्रोखा बारा टाका बानाका नेक्रोबाला संदना खाला बाराका नेक्रोबारा नमा शेठे लेखेरे बेशेके। अब इस चीजों से आजाद कैसे हो सकते हैं? फंसे तो हैं, निकल कैसे सकते हैं? पहला नंबर, एक आत्मिक पास्टर के अधीन हो जाओ, एक आत्मिक पास्टर के अधीन हो जाओ। मैं 4 पास्टरों की बात नहीं कर रहा हूं। एक को फोन किया, उसने उठाया नहीं, अब दूसरे पास्टर को लगा लिया, उसने उठाया नहीं, तीसरे को लगा लिया। मैं उनकी बात नहीं करता हूं, कभी आजाद नहीं होंगे वो सोचते हैं जिस लेवल पर पहुंचने के लिए कभी नहीं पहुंच सकते। एक को एक के अधीन होना। एक अभी महाराष्ट्र तक लोग जुड़े हुए हैं, वो वीडियो के द्वारा, वो मोबाइल के द्वारा जुड़े हुए हैं, बस जुड़े हैं, वो प्रार्थना करवाते हैं, बड़े काम हो रहे हैं, बड़ी गवाहियां आ रही, बड़ी आशीषें, बड़े छुटकारे हो रहे हैं उनकी जिंदगी में। जो पास्टर खुद झूठ बोलता है, जो पास्टर खुद झूठ बोलता है भाई, खुद फिल्में देखता है सिनेमा में जाकर, उसके ना चर्च में जाने से अच्छा है किसी ऐसे पास्टर आत्मिक को ढूंढ लो जो फोन पर ही प्रार्थना करता रहे, फोन पर वचन देता रहे। ये पास्टरों के लिए वचन अलग से पवित्र आत्मा दे रहा है। आने वाले टाइम में इसके ऊपर चर्चा की जाएगी और पवित्र आत्मा मुझे गहरे भेद देगा। शाखा लाबा लाखा लाबा लाबा लाखा लाबा लाबा। कभी कभी ऐसे कुछ लोग निकल नहीं पाते क्योंकि 3-4 तो पास्टर हैं उनके। कभी कभी वो टेस्टमनी जो चाहते हैं वो होता नहीं
क्योंकि 3-4 तो पास्टर है उनके। खास तो एक ही होता है, बाकी जो मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं। शाकालाबा लाकालाबा सेंदे रेखे। पहला, किसी आत्मिक अगुए के अधीन हो जाओ। दूसरा, प्रार्थनाएं रोज करने की आदत डालो। बाइबल रोज पढ़ने की आदत डालो। प्रार्थना कितनी, बाइबल कितनी? कम से कम प्रार्थना 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को। बाइबल 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को। और जो आज मन फिरा रहा है, अगर वो व्यभिचार में था, अगर वो चोरी में था, अगर वो झूठ बोलने वाला है, तो वो 7 दिन के व्रत रखे, शाम को 6 बजे खोल दे, हल्का भोजन खाकर। 10वां वफादारी से बोने का वादा करे। एक डायरी तो लगा सकते हो ना घर में, एक कॉपी डायरी। आज काम किया, कितना पैसा आया लिख लो, 1 महीने में कितना कमाया लिख लो। तो फिर उसके अनुसार कि तूने 1 महीने में 20,000 कमा लिया तो 2,000 10वां बनता है। इसमें ईमानदार हो जाओ ऐसे करके। शाकलबला सुंदर रखो। चाहे आधी रोटी खा लूं, अचार के साथ रोटी खाऊं, और चोरी नहीं करूंगा, ऐसी सोच आज बना लो। फिर मलाकी 3:10, 11, 12 के अनुसार खुदा कहता है कि मैं अपने वादे के अनुसार दुष्ट आत्माओं को झिड़कूंगा जो तुम्हारे आसपास हजारों दुष्ट आत्माएं जिसने तुझे परेशान किया, तंग किया। फिर वो कहता है कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर आशीष की वर्षा इतनी करूंगा कि रखने को जगह नहीं होगी। तुम्हारे बीज, तुम्हारे दानों के ऊपर वो पानी आत्मा का देगा। वो बीज अच्छा वृक्ष बन जाएगा, फलदायक होगा, कच्चे फल नहीं गिरेंगे। सभी कौमें, रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग तुझे धन्य कहेंगे, तुम ब्लेस्ड होगे। तेरा आना, तेरा जाना मुबारक होगा, परमेश्वर कहता है। हालेलुया। खुदा की महिमा, खुदा की तारीफ करते हुए, परमेश्वर की महिमा करते हुए, जोरदार ताली के साथ जोरदार हालेलुया का नारा मारते हुए यीशु मसीह के नाम में हालेलुया, इन जीसस नेम, हालेलुया। जितने लोग इस सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए, जो हम अपने गांव में आने वाले टाइम में चर्च के काम को शुरू करेंगे, जितने लोग अपने दिल से, प्यार से इस सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए बीज ऑफरिंग बोना चाहते हैं, इस नंबर पर जो आपको दिखता है, गूगल पे, पेटीएम कर सकते हैं। हम अपनी कमाई से अपना गुजारा करें, ये सोच है, पर जो बीज है, जो ऑफरिंग है, खुदा की महिमा के लिए लग सके। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपके हाथों के कामों को बरकत दे। जितने हेल्पर्स है, बीज बोने वाले, पवित्र आत्मा कहता है तुझे बहुत बढ़ाएगा, बहुत आशीष देगा। वो बीज बोने वालों को परमेश्वर आशीष देगा, बरकत देगा, क्योंकि वो वचन को पूरा करते हैं। तुम मुझे आशीष देते हो, खुदा आपको आशीष देगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को, आपके साथ जुड़ी हर चीज को सलामत रखे। आप सदा खुश रहें, यीशु मसीह के नाम में। आमीन।